मजर साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, 5 मिनट आप लेट हैं। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। असल में आज क्या हुआ सर, थोड़ा हमारा इनॉग्रल सेशन थोड़ा सा लेट तक चला। इनॉग्रल में अपने केरला के गवर्नर साहब महामहिम आसिफ अपने आरिफ मोहम्मद खान साहब थे, और दूसरे हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय मोहन यादव जी थे। तो वो थोड़ा सा सेशन लेट हुआ, इसके कारण पहला सेशन लेट हो गया। तो बस अब हम लोग चालू ही कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपसे बस नमस्ते कर लें। और बाकी फिर ये हमारे आज के आपके सेशन के कोऑर्डिनेटर हैं सुधांशु कादगरे जी, ये रूबरू होंगे। तो मैं सबसे पहले सर, चूंकि अब आपका शुरू में ही धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और बहुत कम समय हमने आपको दिया। उसमें भी आपने, ये आपका स्नेह ही है, हमारे कुलपति जी के प्रति आपका स्नेह है कि आपने तुरंत इसको स्वीकार कर लिया। और मैं पार्टिसिपेंट्स को यहाँ थोड़ा सा एक ब्रीफ करना चाहूँगा। मजहर आसिफ साहब उन लोगों में से हैं जिनने इस एनईपी के ड्राफ्ट से लेकर अभी तक काम किया है। शुरुआत में जब इसको चित्रा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका हैंड रेज है। ओके चित्रा जी, यू वांट टू से समथिंग? डॉक्टर चित्रा ओके। सो मजहर आसिफ साहब उन लोगों में से हैं जिन्होंने एनईपी को बहुत नजदीक से देखा है और उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है और किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। तो मुझे लगता है कि आज के समय में मजहर आसिफ साहब से ज्यादा अथॉरिटी कोई नहीं रखता जो इस विषय को हमारे बीच रख सके। तो मैं मजहर आसिफ साहब का इस वेबिनार में और इस एफडीपी में, जो 5 दिवसीय एफडीपी है, इसमें बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपका अभिनंदन है सर, प्लीज। तो अब मैं जी सर, अब मैं सुधांशु जी से आग्रह करूंगा वो आगे की कार्रवाई पूरी करें। सुधांशु जी। Very good afternoon and hello to all. I, Sudhanshu Kadare, would like to welcome all the respected senior professors, faculty members, and participants in this session of 5 days Atal Faculty Development Program sponsored by AICTE on NEP 2020 Implementation for Quality Education, organized by Department of Media Management, Makhala Chaturvedi, National University of Journalism and Communication, Bhopal. First of all, I would like to welcome you, sir, our eminent keynote speaker, Mr. Mazhar Asif, sir, Professor and Dean, School of Literature and Cultural Studies, JNU, for his views on the topic NEP 2020, Innovative and Responsive Curriculum and Pedagogy. Before he starts, although there is a humble request to all the participants here, that question and answer sessions would be after Asif sir's speech. So kindly mute yourself during his speech. And now, although Asif sir is a renowned academic figure, still I would like to give a brief introduction about Mr. Asif sir before he starts. Mr. Mazhar Asif sir is Professor and Dean, School of Literature and Cultural Studies, JNU. He is a member in NEP Drafting Committee. He is a member in NEP Monitoring Committee. He is a member in NAAC peer team. He is a member in Executive Council, JNU. He is a member in MAANU. He is a Board of Studies member to a number of central universities. Also, Mr. Asif sir has 26 years of teaching experience, out of which 9 years as a professor. And he has published 9 books. He has published 9 books and 24 research articles in English, Assamese, and Persian languages. Also, Persian, Assamese, and English dictionary has been compiled by him. So, after this brief introduction, over to you, Asif sir, for your speech. Please, sir. Thank you very much, my dear friend. Thank you, sir. Before I start, I would like to request all of my colleagues sitting in front of me, if possible, switch on your videos.
अगर आप अपने अपने वीडियो ऑन करके रखेंगे तो क्लास की एक फीलिंग आएगी, एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पेडागोजी। जब हम व्हेन वी लुक ईच अदर, जब आंख में आंख मिलाकर हम बात करेंगे, सो इट गिव्स अ क्लासरूम फीलिंग। ऐसे ही हम जो है 2 साल से ऑनलाइन कोर्स करते करते हम लोग जो है वो थक चुके हैं। so let us see each other, and as I was told by my dear friend, I have been asked to share my views on quality in higher education and different kind of pedagogies going to be implemented as envisioned by NAP 2019. You all are teacher, either in a college or university. So I am sure आप लोगों ने NAP को जरूर पढ़ा होगा, and I am also sure you have done critical thinking, critical appreciation भी आपने किया होगा. So before going in detail, expecting that you have read NEP 2019 at least in 60 pages or 32 pages, forget about the 300 pages which originally we submitted to the ministry. Let us talk about the quality. When we talk about the quality, there are 4 components: student, teacher, subject, and the institution. The quality of education circles around these 4 components: teacher, subject, and of course institution. Let us talk one by one. If you talk about the student, in NAP we have very clearly mentioned that the purpose of education is physical, mental, and spiritual growth and development of a student. There are 3 components here also: स्टूडेंट का फिजिकल डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट, एंड ऑफ कोर्स उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. As far as the mental development is concerned, as all of you know that students are like a plant. प्लांट को आप जितनी अच्छी तरह से रख रखाव करेंगे, देखभाल करेंगे, उसमें पानी समय पे खाद, समय पे फर्टिलाइजर डालेंगे, वो प्लांट उतना ही अच्छा होगा, वो प्लांट उतना ही बेहतर होगा, और उस प्लांट के फ्रूट्स और फ्लावर भी. टिल टुडे we have been said, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब. ये फ्रेज जो है, आई थिंक हर फैमिली में जब बच्चे खेलते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो आवर फोर फादर्स और मदर्स, पेरेंट्स भी ये कहा करते थे. बट नाउ माय डियर एस्टीम कलीग्स, ये चेंज्ड हो गया. अब हो गया पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, होगे खराब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे नवाब. ये उल्टा हो गया. इसी फ्रेज को ध्यान में रखते हुए हमने स्टूडेंट की हर एक्टिविटीज को
पार्ट ऑफ कोर्स करिकुलम हमने बनाया, यानी henceforth any activities done by a student is part of the main course curriculum. Earlier it was part of the extracurriculum activities. Now कोई भी काम जो बच्चा करता है, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, स्पोर्ट्स हो, डिबेट हो, डांसिंग हो, ड्रामा हो, नाटक हो, एनसीसी हो, एनएसएस हो, now henceforth all are considered to be part of main course curriculum. This is for physical development of a children. Now, yoga, sports, literary club, dance club, drama club, painting club, all clubs are considered to be the main course curriculum of the main subject of the main curriculum. NCC, now as you know, a notification has come out from UGC and from Government of India. In JNU, from next coming session, NCC would be offered as one of the optional subject to our undergraduate students. So this is for a physical development of children. फिजिकली अगर वो फिट है तो मेंटली भी फिट होगा। अब वो एजुकेशन में स्टैंडर्डाइजेशन और गुणवत्ता इसको हम कहते हैं, ये कैसे आएगा? एक तो फिजिकल एक्टिविटीज हो गया पार्ट ऑफ द मेन करिकुलम। नाउ मेंटल, अभी तक हम लोग रूट लर्निंग पर, वी आर कंसंट्रेटिंग और रूट लर्निंग। हम जो है बच्चों को कोई चीज देते हैं, बच्चे नोट याद करते हैं, बच्चे लेसन याद करते हैं। ये कोचिंग खुल गए, बच्चे नीट के कोचिंग है, इंजीनियरिंग के कोचिंग है, मेडिकल के कोचिंग है, यूपीएससी के कोचिंग है, डिफरेंट स्टेट लेवल के कोचिंग्स हैं। ये कोचिंग्स में क्या हो रहे हैं? ये बच्चे जो है इस कोचिंग में रूट लर्निंग कर रहे हैं, सब्जेक्ट को रट रहे हैं, और जो रट रहे हैं उसको एग्जाम में जाकर उसको वोमिट कर रहे हैं। ये जितने भी हमारे आईआईटीज थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, what was the philosophy behind the establishment of this kind of institution in India? The philosophy was not to produce a technocrat, to produce a good manager. The philosophy was to produce a good scientist. Scientist to produce हो नहीं पाए। Why? Because नीट के और इंजीनियरिंग के जो एग्जाम पास करके बच्चे आ रहे हैं, उनकी जो बुनियाद है, उनकी जो नींव है, उनकी जो बेसिक एजुकेशन है, उनकी जो बेसिक लर्निंग है, वो मजबूत नहीं। If the foundation is not strong, वो बच्चा जो है आगे चल के वो अच्छा साइंटिस्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर नहीं होगा, कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा, क्रिएटिव स्किल नहीं होगा, कोलैबोरेटिव स्किल नहीं होगा, आर्टिस्टिक स्किल नहीं होगा, सोशल स्किल नहीं होगा, लीडरशिप स्किल नहीं। क्योंकि जो उसकी बुनियाद है वो अपने असल से कट चुका है। अभी तक हमने क्या किया अपनी एजुकेशन सिस्टम में? हमने till this policy, every policy was known as national new education policy.
This is the first policy we have named it National Education Policy. We talked about the राष्ट्र. जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, then automatically our own education system, our own culture, our own संस्कृति, our own परंपरा, our own साझी विरासत are also included in our educational system. कहा जाता है कि अगर किसी कौम को खत्म करना है तो आप उसकी मदर टंग को खत्म कर दीजिए, वो जाति, वो कौम अपने आप खत्म हो जाएगी. यही किया गया हमारे साथ. My dear esteemed colleague, how do you expect कि एक लड़का जिसकी स्कूलिंग और 10+2 और ग्रेजुएशन वो लोकल लैंग्वेज में हुई है, जब वो यूनिवर्सिटी में आता है, then you asked her to force her to speak in English, to write in English. How do you expect? How do you think that a standard education and the quality of education will come out? ये तो पॉसिबल नहीं है ना. आप उसको दाब रहे हैं, आप उसको सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मेजॉरिटी ऑफ आवर स्टूडेंट they do not differentiate what is education and what is knowledge. ये अभी उनका फंडा क्लियर ही नहीं. एजुकेशन क्या है और नॉलेज क्या है, ये इसी में अभी तक कंफ्यूज है वो. अगर आप स्टूडेंट से पूछें कि भाई कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एजुकेशन एंड नॉलेज, क्या आप शिक्षा में और ज्ञान में अंतर कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट. हमारी जो एजुकेशन पद्धति है, आवर एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन ज्ञान, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एजुकेशन. अब उसको लेट अस अंडरस्टैंड विथ एन एग्जांपल. मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं. There was a professor of chemistry. वो उनको कहीं जाना था. He has to cross a river. तो जब प्रोफेसर साहब नाव में बैठ गए तो मल्लाह ने पूछा, नाविक ने पूछा, सर आइए प्लीज बैठ जाइए. प्रोफेसर साहब बैठ गए. बैठते ही प्रोफेसर साहब ने पूछा, अच्छा तुम केमिस्ट्री जानते हो, तुम मैथमेटिक्स जानते हो, तुम फिलॉसफी जानते हो? बेचारा मल्लाह बोलता कि सर मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मैं क्या जानूं फिलॉसफी क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, फिजिक्स क्या है. Why you are asking this type of question to me? I am illiterate. I don't know what is physics and what is chemistry. Unfortunately उसी टाइम जो है ना एक तूफान आया और पानी, नदी का पानी जो है नाव में गिरने लग गया और लग रहा था कि अब नाव जो है वो पानी में डूब जाएगी. तब मल्लाह ने प्रोफेसर साहब से पूछा, सर आपने तो इतनी बार हमसे क्वेश्चन किया, मैं आपको आखिरी क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या आपको तैरना आता है? प्रोफेसर साहब ने कहा कि नहीं. तब मल्लाह ने कहा तब आपका लाइफ बेकार है, बिकॉज हम डूबने जा रहे हैं. तो मल्लाह जो बोल रहा है कि आपको तैरना आता है कि नहीं, ये ज्ञान है. और प्रोफेसर साहब जो पूछ रहे हैं डू यू नो व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज बायोलॉजी, ये एजुकेशन है. हमारा एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी ऑन नॉलेज बेस्ड एजुकेशन सिस्टम. जब तक के नॉलेज बेस्ड एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा तब तक के वी कैन नॉट come out from the root learning. Root learning के बजाय we have to teach our student application learning and experimental learning. हम समझ तो रहे हैं, एक बच्चा अभी कविता तो याद कर ले रहा है,
लेकिन उस कविता को अपने सोसाइटी के साथ क्या वो रिलेट कर पा रहा है? उस कविता को क्या बच्चा अपने फैमिली के साथ रिलेट कर पा रहा है? उस कविता को या उस मैथमेटिक फॉर्मूला को या केमिकल फॉर्मूला को क्या बच्चा अपने फैमिली के साथ, अपने अपने जो है वो सराउंडिंग के साथ को रिलेट कर पा रहा है कि नहीं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज लैकिंग बिहाइंड, जिसमें हम अभी भी बहुत पीछे हैं। अब ये कब होगा? Unless or until you do not teach children in their mother tongue, गुणवत्ता उस वक्त तक नहीं आ सकती, एजुकेशन में स्टैंडर्ड उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक के बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कंसेप्ट उस वक्त तक क्लियर नहीं हो सकता जब तक के बच्चे को वो कंसेप्ट समझ में नहीं आ रही है। उस वक्त तक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगी जब तक के बच्चे को उसकी अपनी जबान में वो बात आप नहीं समझा पा रहे हैं। That is why we have very strongly recommended that all education, primary, middle, up to higher education, should be given in the mother tongue and the local language of the children. ये children का right है। ये पहली बात नहीं, it is not first time that we are suggesting this. Mahatma Gandhi, when started the Nayi Talim, that time he had said that a student has right to be taught in their mother tongue. UNESCO has said it. UNO has said it. I will give you one data. All the Nobel Prize winner of different country, अगर आप उनको डेटा लेंगे, all belong to a country where KG to PhD language is mother tongue. I repeat, all the Nobel Prize winners coming from the different countries, in that country, the medium of instruction since KG to PhD is mother tongue. हम ही जो है अपने मदर टंग में नहीं पढ़ा पा रहे हैं बच्चों को। आप ये सोचें कि ये कट एंड पेस्ट जो है ट्रेडिशन कब तक चलेगा? उस वक्त तक चलेगा जब तक के बच्चे के अंदर से ओरिजिनल चीज नहीं आएगी। ओरिजिनलिटी कब आएगी? When the children जिस लैंग्वेज में वो बच्चा सोच रहा है उसी लैंग्वेज में अगर वो लिखे। हम क्यों कहते हैं कि प्रेमचंद में रियलिटी है? बिकॉज प्रेमचंद ने जिस भाषा में सोचा उसी भाषा में लिखा। अब आप मछली को बोल रहे हैं कि दौड़ो और बंदर को बोल रहे हैं कि तैरो, ऐसा नहीं हो सकता। हर स्टूडेंट के साथ ऊपर वाले ने कोई ना कोई क्वालिटी जरूर दी है। उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो सकता है, उसका जो है वो कोलैबोरेटिव स्किल अच्छा हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, क्रिटिकल हो सकता है। इट इज वी द टीचर जो उसके अंदर छिपी हुई जो विशेषता है उसको बाहर निकालकर उसको उसी के योग्य बनाता है। So the first criteria to enhance quality in education is that the student should be provided all kind of facilities to be taught in his environment and in her language and in her knowing about all things history to geography. My dear esteemed colleague, when we talk about the language, सिर्फ language नहीं है। With language, there is a tradition, there is a history, there is a culture, there is a sanskriti, there is a sanskar, there is a way of life, there is a food habit, there is a dress, there is a music, there is a traditional knowledge, there is a medicinal knowledge.
each and everything now become part of language. अगर लैंग्वेज किसी भी स्टूडेंट को उसी की लैंग्वेज में उसी एग्जाम्पल में अगर आप समझाएंगे तो he or she can understand you. Here I will give you another example. Recycling. किसी भी बच्चे को जो मैथमेटिक्स का को प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, आप उसको गांव में ले जाइए और जो कुआं जो खोदा जाता है वेल, उसको अगर अच्छी तरह से उसको देखने के लिए दीजिए तो मैथमेटिक्स का सब फॉर्मूला उसको प्रैक्टिकल आ जाए। गांव का आदमी बगैर घड़ी देखे एग्जैक्ट टाइम बताता है। गांव का आदमी बगैर जंतरी और बगैर वो कुछ क्रियाक्रम किए हुए जो है वो बता देता है कि कल बारिश होगी कि कल नहीं बारिश होगी। गांव के लोग जनरली दे डू नॉट गो टू द डॉक्टर्स। उनके पास घर में, उनके आंगन में, उनके सराउंडिंग में मेडिसिनल प्लांट होते हैं एंड दे हैव द वास्ट नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट। ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये जो मेडिसिनल नॉलेज है, ये जो हमारी नॉलेज जो परंपरा है, ज्ञान परंपरा है, इसको नाउ टाइम आ गया है इसी को बेस करके हम ज्ञान दें। जब तक के हम नॉलेज बेस्ड एजुकेशन नहीं लाएंगे, जब तक के उस बच्चे की बुनियाद, उस बच्चे की नींव हम मजबूत नहीं करेंगे, जब तक के उस बच्चे को उसी के ज्योग्राफी में, उसी की हिस्ट्री में, उसी की भाषा में हम नहीं पढ़ाएंगे, तब तक के हम एजुकेशन में गुणवत्ता नहीं ला सकते। First was physical, second was mental. Now come to the third one is spiritual. ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिस तरह से हम शिक्षा में और ज्ञान में हमको डिफरेंस नहीं है आया, उसी तरह से हम धर्म में और रिलीजन में अभी तक हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। There is a big gap between religion and dharma. हमने अपने बच्चों को सेकुलरिज्म की वजह से धर्म पढ़ाना छोड़ दिया हमने। Because what we perceive, what we think that dharma is religion. My esteemed colleague, dharma is not a religion. Yada yada hi dharmasya. This is a dharma. In our society, dharma of each and every individual is well defined. छात्र का एक धर्म है, शिक्षक का एक धर्म है, माता का एक धर्म है, पिता का एक धर्म है, क्लासमेट का एक धर्म है, स्कूल प्रिंसिपल का एक धर्म है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का एक धर्म है, को पैसेंजर का एक धर्म है। हमारा धर्म जो है वेल डिफाइंड है। इसी धर्म में हमको एथिकल वैल्यूज, इसी धर्म में हमको कैरेक्टर बिल्डिंग्स, इसी धर्म में हमको जो है हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिएक्ट, ये सिखाया जाता है। हमारी पूरी 550,000 हिस्ट्री में कहीं भी नोवेयर यू विल फाइंड दैट धर्म इज रिलीजन। रिलीजन तो अभी रिसेंटली दिया हुआ चीज है। वी बिलीव इन धर्म। हमारा धर्म वेल डिफाइंड है। बच्चों को अगर शुरू में, आजकल के देखिए, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ, यू आर अ टीचर ऑफ ए कॉलेज, आई एम अ टीचर ऑफ ए यूनिवर्सिटी। आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं उनके पास मोरल नहीं है, एथिक्स नहीं है। हम खुद बोलते हैं क्या तुम्हारे पास संस्कार नहीं है क्या? तुम्हारे माता पिता ने तुमको संस्कार नहीं सिखाया क्या? क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि उस बच्चे को एथिकल बेस्ड एजुकेशन, मोरल बेस्ड एजुकेशन, संस्कार बेस्ड एजुकेशन, संस्कृति बेस्ड एजुकेशन उसको हमने नहीं दिया। उनको हमने धर्म नहीं सिखाया, उनको हमको ये नहीं सिखाया कि ये पाप है, ये पुण्य है। उनको हमने ये नहीं सिखाया कि इंसान और इंसानियत से जो है मोहब्बत करना है। उनको हमने ये नहीं सिखाया कि गुरु को कैसे जो है
गुरु को कैसे नमस्कार करना है, हमने उनको ये नहीं सिखाया कि माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, हमने उनको ये नहीं सिखाया कि खाने का तरीका क्या है, बोलने का तरीका क्या है, पहनने का तरीका क्या है, चलने का तरीका क्या है। ये ऑल आर पार्ट ऑफ नाउ आवर पेडागोजीज। ये सिखलाना पड़ेगा। ये ना सिखलाने की वजह से आज जो बच्चे भटक रहे हैं, आज जो बच्चों को जो है अपनी परंपरा के बारे में पता नहीं है, अपनी संस्कृति के बारे में पता नहीं है, ये क्यों हो रहा है? ये बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा कि अगर तुम्हारे दिल में शिक्षक के प्रति श्रद्धा नहीं तो तुमको ज्ञान आ ही नहीं सकता। जिस छात्र के दिल में गुरु के प्रति अगर वो उसको श्रद्धा नहीं है तो कैसे ज्ञान उसमें जाएगा? पॉसिबल ही नहीं। तो ये आता है आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में। अभी तक हम एजुकेशन में रूट लर्निंग पे जा रहे हैं, बच्चों को जो इंजीनियर बना रहे हैं, टेक्नोक्रेट बना रहे हैं, लेकिन बच्चों को एक अच्छा इंसान नहीं बना पा रहे हैं। एक बच्चे को इंजीनियर तो बना पा रहे हैं, उनको ये नहीं बता पा रहे हैं कि बच्चे बेटे ये जो पुल बनाओगे, अगर इसमें 2 नंबरी काम करोगे, अगर सही से काम नहीं करोगे तो ये पाप है, इसका पाप लगेगा, तुमको नहीं लगेगा, किसी और को लगेगा, ये गलत काम है। हमने MBBS MD डॉक्टर बना दिया, लेकिन डॉक्टर को हम ये नहीं बता पाए कि मरीजों को कैसे बात करना है, कैसे उसका उपचार करना है, कैसे उसको प्यार से बोलना है, कैसे उसके साथ व्यवहार करनी है। अगर कोई चीज गलत करोगे तो गलत का जो है फायदा जो है गलत ही होगा। ये हम नहीं सिखा पाए। Henceforth, in the NAP 2020, we strongly recommend that subject of dharma, ethical based education, moral based education, आप इंजीनियरिंग के बच्चों को भी पढ़ाओ, आप मेडिकल के बच्चों को भी पढ़ाओ, आप मैनेजमेंट के बच्चों को भी पढ़ाओ, ताकि वो जान सके इंसान क्या है, इंसानियत क्या है, राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, माता पिता का सम्मान कैसे होता है, गुरु का सम्मान कैसे होता है, छोटों के साथ कैसे बात करनी है, बड़ों के साथ कैसे बात करनी है। ये सब चीजें आएगी तभी वो लड़का will develop in a complete human being। तब हम कहेंगे वो yes he is educated। ये है पार्ट ऑफ द spiritual development। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इज द स्टूडेंट। उसका 3 पार्ट मैंने आपको बता दिया, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। नाउ कम टू द टीचर। The second part is teacher. We are teacher. As you know, in our tradition, we have 6 varieties of teacher। हमारे यहाँ बाहर तो सिर्फ टीचर है, या असिस्टेंट है, एसोसिएट है, प्रोफेसर, बट इन आवर ट्रेडिशन हमारे पास जो है 6 तरह के टीचर्स होते हैं। नंबर 1, जिसको हम अपनी परंपरा में अध्यापक बोलते हैं। व्हाट वी कॉल्ड अध्यापक। अध्यापक का काम क्या है? जो सिंपली आपको कोई जानकारी देता है, यह अध्यापक है। सेकेंड इज उपाध्याय। उपाध्याय क्या करता है? जो जानकारी के साथ ज्ञान भी देता है। पहले ज्ञान नहीं था, उपाध्याय जानकारी के साथ आपको ज्ञान भी दे रहा है, ये उपाध्याय है। तीसरा काइंड है आचार्य। आचार्य कौन होता है? जो जानकारी और ज्ञान के साथ आपको कौशल भी प्रदान करता है, जो वोकेशनल स्टडीज आपको देता है।
You will be surprised to know that India in the vocational study is the lowest in the world. Abhi only 5% of our students are adopting, or you can say have knowledge in vocational studies. जो हम कौशल विकास की बात कर रहे हैं, जो हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, it is based on this. जब तक के एक स्टूडेंट के हाथ में ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, unless or until he or she is not considered to be a complete human being. So आचार जो है, जो जानकारी और ज्ञान के साथ कौशल प्रदान करता है. नाउ पंडित, हु इज पंडित? जिसको किसी स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपर्टीज होता है. वन हु हैज a special kind of knowledge in a particular subject. Then the fifth is drishta. Who is drishta? जो कि दूरदर्शी होता है. Then the last point of a teacher in our tradition is guru. जो आपको अंधकार से निकाल कर जो है आपको उजाले की तरफ लाता है, जो आपको कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है, जो आपको ध्यान देता है. A guru does not give fish to his student, rather a guru teaches his student how to catch the fish. So before going to the role of a teacher in building an education system based on quality, I shared the 6 kind of teacher we have in our tradition. Now, in NAP 2020, we have clearly mentioned 5-6 points relevant to teacher. Number one, those teacher, 6 kind of teacher we discussed to you. Then role of teacher, the first point we mentioned in the NAP 2020 is our teacher should be always happy. His family should be always happy. He should be paid handsomely. He should be promoted on time. He should be tension free from all kind of mental disorder. There should be no any vacancy like a guest faculty, no like a non-permanent, any time of non-permanent vacancy must be avoided. एक टीचर को उसकी लाइफ की, उसके कैरियर की पूरी गारंटी मिलनी चाहिए. नंबर 5, जिस देश में, जिस कंट्री में टीचर का सम्मान नहीं, उस देश की तरक्की कभी भी नहीं होगी. हमेशा ध्यान रखिएगा. सॉरी. हाँ, जिस कंट्री में एक शिक्षक की इज्जत नहीं, रेस्पेक्ट नहीं, वो कंट्री कभी भी विश्व गुरु नहीं हो सकता. यू गो बैक टू आवर हिस्ट्री. हमारे हिस्ट्री में गुरु जो था वो विष्णु भी है,
गुरु महेश भी है, गुरु भगवान है। एक राजा भी गुरु का पैर छूता है। क्यों छूता है? चाणक्य ने ऐसे नहीं बोल दिया था कि शिक्षक जो है कोई साधारण मनुष्य नहीं होता। एक शिक्षक के गर्भ में भूत और भविष्य दोनों पलता है। ऐसे नहीं कहा था उसने। हम साधारण व्यक्ति नहीं है, ये दिमाग में आप रखें कि वी आर नॉट अ सिंपल पर्सन। हम एक बच्चे को जो बोलना नहीं जानता, हम उसको बोलना सिखाते हैं। एक बच्चा जो लिख नहीं सकता, ही और सी कैन नॉट राइट, हम उसको लिखना सिखा देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये सिंपल बात नहीं है। वी आर नॉट अ साधारण पीपुल, हम सिंपल टीचर नहीं है। अगर भारतवर्ष को विश्व गुरु बनना है ज्ञान में, तो एक शिक्षक की इज्जत, प्रतिष्ठा उसकी और इसकी फैमिली की अगर नहीं होती है, तो कभी भी ज्ञान का गुरु भारतवर्ष नहीं हो सकता। एक शिक्षक के जाने से अगर एक IAS ऑफिसर खड़ा होकर उसका रेस्पेक्ट नहीं करता, एक शिक्षक के घुसते ही अगर मंत्री खड़ा नहीं होता, एक शिक्षक के घुसते ही अगर कोई ऑफिसर खड़ा होकर उसकी इज्जत नहीं करता, उस देश में कभी भी जो है ज्ञान के ऊपर जो है कोई शिक्षा नहीं हो सकती। ये हमने वेरी क्लियरली NAP में लिख रखा है कि उसको खुश करना है, उसको अच्छे पेमेंट करनी है। अगर टीचर, मान लीजिए हमारे सामने हमारे ये नारायण श्रीवास्तव भाई साहब बैठे हुए हैं, मैं उनका भी नाम देख रहा हूं। अगर डोंट टेक इट अदरवाइज, अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता इन्होंने अपने घर में आज फैमिली से कुछ प्रॉब्लम हो गया, बच्चे से प्रॉब्लम हो गया, वो टेंशन में है, अगर वो उसी टेंशन के साथ क्लास में आते हैं, तो क्या आप बताइए श्रीवास्तव साहब अपने जो लेक्चर जो दे रहे हैं उनके साथ वो इंसाफ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो टेंशन में है। वो फैमिली का टेंशन है, बच्चे का टेंशन है, टाइम पर सैलरी मिलेगा कि नहीं उसका टेंशन है, 2-2 महीना हो गया उसका टेंशन है, जॉब सिक्योर नहीं है। अब हम जो एडहॉक पे काम कर रहे हैं, गेस्ट पे काम कर रहे हैं, हमको ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिया जा रहा है जहां पर मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। संस्कृत टीचर जो है इंग्लिश पढ़ा रहा है, इंग्लिश टीचर जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। मेरे भाइयों, ऐसे माहौल में हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? इसलिए हमने वेरी क्लियरली NAP में टीचर का रोल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, इन ए वेरी ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड हमने लिख रखा है। टीचर खुश, उसकी फैमिली खुश, उसका एनवायरनमेंट खुश, तब जाकर वो टीचर खुशी खुशी क्लास में आएगा। नहीं तो मुंह लटकाए क्लास में रहेगा। कोई स्टूडेंट अगर अच्छा भी क्वेश्चन पूछ जाए तो इरिटेट हो जाएगा, अगर जानता भी है फिर भी उसका जवाब नहीं दे पाएगा। तो ये पहली जो NAP में अबाउट टीचर है, ये क्लॉज हमने डाल के रखा हुआ है। नंबर 2, टीचर शुड इंजॉय हिज जॉब। जब तक कि आप अपने प्रोफेशंस को इंजॉय नहीं करेंगे, तब तक कि आपको मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा। इंजॉयमेंट होना चाहिए पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के लिए एक मिशनरी जिल होनी चाहिए। पढ़ाने के लिए आपको जो है कोई किसी भी हद तक जाना पड़े वो जाना चाहिए आप। नंबर 3, हमने छात्र को सब्जेक्ट चुनने, कॉलेज चुनने, टीचर चुनने, जब चाहा जब पढ़ाई शुरू करने और जब चाहा जब पढ़ाई छोड़ने की पूरी आजादी दी है। मैं एक बार इस सेंटेंस को एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। स्टूडेंट्स आर given freedom to choose the subject, to choose the teacher, to choose the university institution, and to think when he will start the study and when he will stop the study. ये हमने पूरी की पूरी आजादी छात्र को दे रखी है, जिसको टेक्निकल टर्म में हम मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट हमने कहा। उसी तरह से likewise we have also given full autonomy to a teacher। काहे का?
Number one, to design, to redesign, to structure, to restructure course curriculum. ये आपको पूरी आजादी है. No one can interfere you. Take example of JNU. In JNU जितने भी टीचर्स हैं वो कोर्स इंचार्ज होते हैं पर्टिकुलर कोर्स के, और पर्टिकुलर कोर्स को उन्होंने डिजाइन किया होता है. उसका टीचिंग, इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन, सबमिशन ऑफ रिजल्ट, ये एवरीथिंग इज इन हर और हिज हैंड. जब ये जेएनयू में हो सकता है, व्हाई नॉट अक्रॉस द कंट्री? आप भी हमारी उपासना बहन बैठी हुई है, हमारी ये जीनत बहन बैठी हुई है, मनीष भाई हैं, ये निर्मल हैं और नारायण जी हैं. आप लोग भी अपने अपने चॉइस से 2 क्रेडिट का, 3 क्रेडिट का, 4 क्रेडिट का कोर्स डिजाइन कीजिए. उसके अपने बीओएस से, उसको अपने कॉलेज से अप्रूव कराकर उसको ऑनलाइन कर दीजिए. हो सकता है कि आपके कोर्स को एनी स्टूडेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, एनी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ तेजपुर, एनी स्टूडेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मणिपुर उसको लाइक हो जाए एंड ही विल गेट इनरोल्ड इन योर कोर्स. और आपको जो है उसको मटेरियल भेजनी पड़ेगी और वो कहेगा तो आपको पढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द एनईपी. कहीं भी अक्रॉस द कंट्री का कोई भी स्टूडेंट किसी भी ऑनलाइन में वो इनरोल हो सकता है और आपको अपने हेल्प के लिए आपसे वो रिक्वेस्ट कर सकता है. बताइए, इतनी बड़ी आजादी जहां हमने उसकी जो है लुक आफ्टर के लिए कहा कि टीचर खुश रहे, फैमिली खुश रहे, तब तो गुणवत्ता आएगी, तब तो अच्छे एजुकेशन सिस्टम होगा. देन हमने कहा तो उनको आप अपने कोर्स डिजाइन करने के लिए उनकी आप पूरी आजादी. यहां पर मैं कोर्स डिजाइन में माय डियर फ्रेंड्स 2-3 चीजें आपके सामने बहुत ही विद हम्बल रिक्वेस्ट के साथ मैं आपको कहूंगा. अभी तक हम क्या कर रहे हैं? वी आर रनिंग टू द यूरोपियन कंट्री, टू द यूरोपियन एजुकेशनल सिस्टम. आई एम नॉट सेइंग कि उनका खराब है, मैं कभी भी ये नहीं कहा, बल्कि अगर हमारी परंपरा को आप पढ़ेंगे देन यू कम टू नो कि हमारी जो परंपरा है, हमारा जो इतिहास है, हमारा जो मुल्क है, ये दुनिया के किसी भी मुल्क से हिस्टोरिकली, लैंग्विस्टिकली, रिलीजियसली, सोशली ये बहुत ही ज्यादा एडवांस था, अभी भी है और इंशाअल्लाह आगे भी रहेगा. उसकी सिर्फ एक और एक वजह है कि हम ये नहीं बोलते हैं कि मैं ही अच्छा हूं, हम ये बोलते हैं कि मैं भी अच्छा हूं और हमारी बड़ी बहन उपासना जी भी अच्छी है. बस यही एक चीज, तो सब कोई चीज नहीं, ये हमारी जिन में है. हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं मजहर आसिफ ही अच्छा है और ये सब के सब खराब हैं. हमारी हिस्ट्री ही अच्छी है, बाकी की हिस्ट्री बेकार है. हमारा रिलीजन ही अच्छा है, बाकी सब बेकार हैं. हमारा रेस ही अच्छा है. हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा, कभी भी नहीं. हमने पहले बता दिया, हमने कभी रिलीजन की बात नहीं की. आप वेदा को देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, कहीं भी वी हैव नेवर टॉक्ड अबाउट रिलीजन. वी हैव इन आवर हिस्ट्री ऑलवेज हैव बीन टॉकिंग अबाउट धर्म. So when you are designing the course, my dear friend, 2 चीज को आप ध्यान में रखें, इंडियननेस एंड कंटेंट ऑन इंडिया. अभी तक ये मिसिंग है. हमने अभी तक सेक्युलरिज्म की चक्कर में हमने ये सबको मिस किया हुआ है. अगर हमारे पार्टिसिपेंट अपने माइक को अगर ऑफ कर ले तो आई एम वेरी हैप्पी. So talking about the course design. In course designing, Indianness and content of India.
I asked a number of students, बहुत सारी जो बेसिक नॉलेज है उनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज उनकी, मैंने से कहा कि उनकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम जो वॉट एवर वी स्पीक ए स्टूडेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड, एंड वॉट एवर ए स्टूडेंट आर आस्किंग वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि हम उनके मन को और हम उनके दिमाग को नहीं पढ़ पा रहे। देयर इज ए गैप बिटवीन अ टीचर एंड ए स्टूडेंट। हमने जो है एजुकेशन को कंपार्टमेंटल कर दिया है। हमने एजुकेशन के बीच में है ना बड़े बड़े दीवार खड़े कर दिए। ये फिजिक्स मैथ का है, ये सोशल साइंसेस है, ये कॉमर्स है, ये मैनेजमेंट है, ये है और ये वो है। हमने इसको इस तरह से कर दिया कि अब फॉर एग्जाम्पल वन स्टूडेंट ऑफ साइंस, वो अगर कंप्यूटर ये अगर वो संस्कृत पढ़ना चाह रहा है, he is not allowed। वन स्टूडेंट ऑफ संस्कृत हो सकता है उस फिजिक्स में बहुत अच्छा हो, she is not allowed। जबकि हमारी परंपरा में अगर आप बाण भट्ट को पढ़ेंगे, बाण भट्ट की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है वो कादम्बरी है। आई रिपीट, बाण भट्ट की किताब कादम्बरी में बाण भट्ट ने he has described about 64 कलास, और उसने ही हैज मेंशन दैट एक मनुष्य को, एक एजुकेटेड आदमी को शुड बी एक्सपर्ट इन ऑल 64 क्लास। ये 64 क्लास क्या है, जिसको हमने एनईपी में लिबरल आर्ट कहा है। ये लिबरल आर्ट कोई नई चीज नहीं है। इन आवर अर्लियर यूनिवर्सिटी, आप तक्षशिला का ले लें, नालंदा का ले लें, यहाँ पर हमारा एक जो शिक्षक होता था उसी एक सब्जेक्ट में माहिर नहीं होता था। इवन टुडे इन 21st century, if you are appearing in a different kind of competitive exam, ऐसा थोड़ी है किसी भी उसमें हिस्ट्री पूछा जाता है, सिर्फ उसमें केमिस्ट्री पूछा जाता है, सिर्फ उसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है। नो, नॉट एट ऑल। जब मैं एक कंपनी के लिए किसी को हायर करता हूं तो मैं चाहता हूं कि एक बच्चे के अंदर में एटलीस्ट एज फार एज पॉसिबल ऑल काइंड ऑफ नॉलेज शुड बी देयर। ये वही 64 कला है जिसके बारे में बाण भट्ट ने अपनी किताब कादम्बरी में कहा था। सो व्हेन यू बिफोर डिजाइनिंग वन कोर्स काइंडली कीप इन माइंड कि आप उसमें इंडियननेस और इंडियन कंटेंट जरूर रखें। आई एम नॉट सेइंग कि आप एरिस्टोटल को नहीं रखें, प्लेटो को नहीं रखें, आप जो है उसमें न्यूटन को नहीं रखें, आप उसमें जो ग्रेट 21st सेंचुरी के मैथमेटिशियंस हैं उनको नहीं रखें, सबको रखें आप। लेकिन आपसे मेरी एक ही गुजारिश है कि आप जब इनको रखें तो हमारे भास्कराचार्य को भी रखें, कनाड को भी रखें, नागार्जुना को भी रखें, आप सुश्रुता को भी रखें, चरक को रखें, अब आप जो है आप चाणक्य को भी रखें, पाणिनि को भी रखें, स्वामी विवेकानंद जी को भी रखें, ये सब को भी रखें, ताकि हमारे बच्चे की अपनी ओन ट्रेडिशन और मॉडर्न ट्रेडिशन के मिक्सअप से उनकी जो ब्रेन की जो ट्यूनिंग होगी और उनका ब्रेन जो डेवलप करेगा वो जाकर जो है एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग बनेगा। अभी भी हमारे कोर्सेज में मैथमेटिक्स के बारे में आप जानते हैं कि हमारे वी आर सो एडवांस इन मैथमेटिक्स, वी आर सो एडवांस इन ज्योग्राफी। अरे भाई 21st सेंचुरी या 19th सेंचुरी में द वर्ल्ड केम टू नो द दुनिया गोल है, हमने तो भूगोल नाम ही रख दिया उसका, हमने उस सब्जेक्ट को ही भूगोल कह दिया। अब बताइए कब की बात है ये? नाउ दे आर सेइंग कि दुनिया जो है गोल है, हमने उस सब्जेक्ट का ही कह दिया भूगोल। तो जब हम व्हेन वी आर डिजाइनिंग द कोर्स स्ट्रक्चर, काइंडली हमारे अपने जो ट्रेडिशंस हैं, हमारी अपनी जो परंपरा है, हमारी अपने जो ग्रेट साइंटिस्ट, फिलोसोफर और मैथमेटिशियंस हैं, आप काइंडली उनको भी इंक्लूड करें,
ताकि ये क्लासिकल और मॉडर्न हो जाए। ये जितने भी वर्ल्ड के जितने भी आप देख रहे हैं, अब बताइए मेरे हिसाब से सबसे अच्छी जो सोशियोलॉजी की जो किताब है वो रामायण है। आपने रामायण पढ़ा होगा, आई डोंट नो संस्कृत, मैंने संस्कृत में नहीं पढ़ी है, मैंने फारसी में रामायण पढ़ी है। इससे अच्छी बुक हमको सोशियोलॉजी पर नहीं मिलती, रामायण से अच्छी बुक आप एंथ्रोपोलॉजी पे हमको नहीं मिलती। महाभारत में जिस तरह के आर्म्स एंड आर्मामेंट और जिस तरह से सिक्योरिटी की बात हो रही है आज इन 21st सेंचुरी में, हमको वहां मिल रहा है, तो वहां से हम क्यों ना ये कंटेंट ले लें। जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो हम रिलीजन की बात में हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ आप एक धर्म तो पढ़ाए ही, हम रिलीजन का भी एक एक लेसन, जहां एथिक्स की बात हो, जहां मोरालिटी की बात हो, जहां ह्यूमनिज्म की बात हो, कुरान से कुछ ले लिया, गीता से कुछ ले लिया, बाइबल से कुछ ले लिया। इससे क्या होगा कि हमारे बच्चे जो है हर, देखिए आई डोंट नो आप लोग में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हमारा कंट्री, हमारी जो कंट्री है ऐसे ही नहीं है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आप if you study the contemporary Indian countries, Indian culture, सब के सब खत्म हो। आज इन 21st सेंचुरी में जो भी हमारी कल्चर के कंटेम्पोररी थे वो सब के सब रूइन हो गए और दे आर रीनेम्ड। अब हमारे कंटेम्पोररी कौन थे? ईरान था, ईरान क्या हो गया? नाउ इट इज रीनेम्ड। इकबाल ने ऐसा ही नहीं कहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां दौरे जवा हमारा। अरे देयर इज समथिंग इन आवर, इस मिट्टी में कुछ तो है, इस कल्चर में कुछ तो है, इस एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो है, इस परंपरा में कुछ तो है, जो 50,000 सालों से हमने अपनी परंपरा को बचा कर रखा हुआ है। और माय डियर फ्रेंड, वन थिंग आई एम वेरी कॉन्फिडेंट टू शेयर विथ यू, आप किसी भी लैंग्वेज का नाम लीजिए, इट इज इन इंडिया। आप किसी भी रिलीजन का नाम लीजिए, इट इज इन इंडिया। आप किसी भी रेस का नाम लीजिए, इट इज इन इंडिया। आप यू फॉरगेट अबाउट रेस एंड रिलीजन। इन इस्लाम देयर आर 365 सेक्ट। फॉर्चुनेटली all 365 sects are found in India. In Christianity there are more than 100 sects. All 100 sects are found in India. In Judaism there are more than 55 sects. All sects are found in India. अब बताइए, अब इससे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो सकती है? ये फ्लेक्सिबिलिटी हमको क्यों आ रही है? बिकॉज इन एजुकेशन, इन नॉलेज हम बहुत ही ज्यादा एडवांस थे, अभी भी हैं। दैट्स वाई हम डिफरेंशिएट नहीं करते कि ये वो है और वो ये है। अरे भाई, हम तो गोबर की, पानी की, पत्थर की, जंगल की, पेड़ की, हर चीज की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए, हम उसके लिए हैं। तो माय डियर फ्रेंड, व्हेन यू आर गोइंग टू डिजाइन और रीडिजाइन द कोर्स, करिकुलम, सिलेबस, ये हमारी जो अपनी परंपराएं हैं, हमारी अपनी जो साझी विरासत है, हमारी जो अपनी संस्कार है, हमारे अपने जो ग्रेट मैथमेटिशियन है, ग्रेट फिलोसफर्स हैं। अब बताइए, मैं आई एम ए स्टूडेंट ऑफ ए लैंग्वेज। पाणिनि से बड़ा लैंग्वेजिस्ट हमको नहीं मिला आज तक। आपने चाणक्य का नाम सुना होगा। अब बताइए, चाणक्य से बड़ा कोई पॉलिटिकल लीडर आपको मिला है? अब बताओ आप, एक धोती पहनने वाला आदमी एक जो है एक अलग परंपरा से निकलकर पूरे वंश को खत्म कर देता है और अपने हिसाब से जो है अपने राजा बना देता है। तो हम साधारण आदमी कैसे हो गए? वी आर नॉट अ साधारण आदमी। बट अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा हुआ कि हम जो है वो अपने आप को जो है हीन समझने लगे। हम अपने आप को जो है, अरे हमारे अंदर ज्ञान है, ये हमेशा आप ध्यान में रखें। सो बिफोर कोर्स डिजाइनिंग आप इनको भी ध्यान में रखें, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ये बहुत ही ज्यादा वास्ट है। नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन पैरेलल टू आवर ट्रेडिशनल नॉलेज। इंडिया के एवरी नूक एंड कॉर्नर में आप जाएं,
हमारी दादी नानी की कहानियां आपको मिलेंगी। वो कहानी में क्या है, देखिए अभी मैं पेडागोजी की जब बात करूंगा तो उसमें करूंगा द बेस्ट पेडागोजी इज टू टीच अ स्टूडेंट बाय नरेटिंग ए स्टोरी। ये सबसे अच्छी पेडागोजी है, और ये पेडागोजी हमने दिया है पूरे वर्ल्ड को, इंडिया ने दिया है। नंबर 3, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को भी आप इसमें पार्ट बनाएं अपने कोर्स करिकुलम में। ओरल हिस्ट्री हमारे पास बहुत ज्यादा है, कैन यू हियर मी? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, We can sir. hear you. Perfectly, sir. Please continue. Okay, right. Thank you. So all kind of think there is some technical problem. I don't know what happened. Yes, sir. You are audible now. Okay, thank you. So this should also be made part of our course curriculum, our syllabus. बहुत सारे बच्चे जो है ना अब ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम खत्म हो गए हमारे यहाँ। मेडिसिनल प्लांट, अब बताइए, अब नाउ द पीपुल आर मूविंग टू द आयुर्वेदा। व्हाई? पूरी दुनिया में अब चीनी खत्म होकर लोग गुड़ खा रहे हैं। ये पैंडेमिक ने इस तरह से माहौल क्रिएट कर दिया कि हर घर में लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी, जीरा, लौंग, मिर्च, ये सब फिर लोग लगे खाने। ये तो हमारी दादी नानी खाया करती थी। ये ओल्ड सिस्टम जो है ना, फिर उसका रिवाइवल हो रहा है, पूरी दुनिया उसको सेल कर रही है, और वी आर लैकिंग बिहाइंड। हमारे पास 1000 वैरायटीज ऑफ राइस है, 1000 वैरायटीज ऑफ ग्रेन्स हैं। मेडिसिनल प्लांट का देख लीजिए, इफ यू गो टू द नॉर्थ ईस्ट में तो हर घर जो है एक मेडिसिन है, एक मेडिकल शॉप है। ये सब ट्रेडिशनल जो है, हमको बच्चों को उनको सिखाना पड़ेगा, अपनी कल्चर को बताना पड़ेगा, अपनी परंपरा को बतानी पड़ेगी। जब तक कि ये हमेशा ध्यान रखें, किसी भी शिक्षा की बुनियाद अगर ज्ञान पे नहीं होगी, अगर एथिक्स पे नहीं होगी, अगर मोरालिटी पे नहीं होगी, फिर वो शिक्षा जो है, आदमी बड़ा IAS ऑफिसर तो हो सकता है, वो इंजीनियर हो जाएगा, वो मैनेजर हो जाएगा, प्रोफेसर हो जाएगा, लेकिन जो हमारी शिक्षा और ज्ञान की जो बुनियादी जो वजह थी, जो हम चाह रहे थे कि एक अच्छा इंसान बने, कबीर ने ऐसे ही थोड़ी कहा दिया कि पोथी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ऐसे नहीं कहा था। अब एक हमने आपको एग्जाम्पल दिया, रूट लर्निंग तो ये हो गया, हमने इसको पढ़ लिया। अब इसकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, इसको एप्लीकेशन होना चाहिए कि हमारे लिए समाज में या हमारे फैमिली में इसका क्या एप्लीकेशन है। सो
student, teacher, subject, course curriculum I discuss with you, and then the final is institution plays a very important role to have a good quality of education. अभी क्या हो रहा है, एक 50,000 अर्न करने वाला गवर्नमेंट स्कूल का टीचर अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है, उस टीचर की सैलरी 20,000 रुपया है। अब मेंटलिटी देखिए, खुद गवर्नमेंट स्कूल में है, 50,000 रुपया सैलरी मिल रही है, लेकिन अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में सिर्फ लिख दिया इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसमें भेज रहा है, और उसके बच्चे के टीचर की सैलरी ज्यादा से ज्यादा 20 और 25,000 रुपये। in this kind of system we cannot give guarantee to a good quality of education. हमने एनईपी में क्या इन्विजन किया है, हमारा सपना क्या है एनईपी में? हमारा सपना है कि ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी शुड बी कन्वर्टेड टू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन यूनिवर्सिटी। अभी तक है कॉमर्स कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, नाउ अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होना चाहिए। When we entered into the यूनिवर्सिटी में आते ही एक शुड बी अ इन्वायरमेंट ऑफ पठन पाठन का माहौल होना चाहिए। Once we enter the university, one should feel, oh, this is the university. A student के लिए all facilities should be available there. क्वालिटी लाइब्रेरी होनी चाहिए, स्मार्ट क्लासरूम्स होने चाहिए, लैब्स होने चाहिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होनी चाहिए। Apart from that, higher institute of education should provide all kind of physical support to a teacher. यूनिवर्सिटी को हम कहते हैं विश्वविद्यालय, महाविद्यालय है, तो महाविद्यालय है तो शुड बिहेव लाइक अ महाविद्यालय। अगर विश्वविद्यालय है तो शुड बिहेव लाइक अ विश्वविद्यालय। फ्रेंडली, स्टूडेंट फ्रेंडली उसका माहौल हो, टीचर फ्रेंडली उसका माहौल हो, एजुकेशन रिलेटेड जो है उसका माहौल हो, जहां पर एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड बोथ टू द स्टूडेंट एंड टू द टीचर। सो एजुकेशन में क्वालिटी लाने के लिए इंस्टीट्यूशन हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग all kind of physical support to a student and teacher. In pandemic for the last 2 years we are suffering a lot. It is the responsibility of the institution. उसको ऑनलाइन जो भी एजुकेशन सिस्टम है उनको प्रोवाइड करें, स्मार्ट क्लासरूम्स हो। यहाँ तो we talking about the classroom, there are thousands of schools जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ पर जो है डेस्क नहीं है, जहाँ पर बेंच नहीं है, the students are sitting on the ground, जहाँ पर टीचर्स नहीं है। So how can we give guarantee to standards? Then the last is what kind of pedagogy we are going to use. मैंने एक बताया, the most important pedagogy which we have given to the world is storytelling. सबसे अच्छा है pedagogy में storytelling का। Then formative assessment, continuous assessment, learning experience,
लर्निंग गोल, हर चीज का एक गोल होता है। अगर एक लेसन से स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आया, स्टूडेंट के अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग नहीं आया, देन दैट एजुकेशन इज यूजलेस, बेकार है, कोई फायदा नहीं उस एजुकेशन से। देन कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, ये बहुत जरूरी है। अभी तक क्या है, साल में एक बार एग्जाम होता था, अभी तक हमने उनको कर दिया सेमेस्टर में। Now in JNU what we are doing, every month there is an exam, every month, yani in a one semester 3 sessionals and 1 final end semester exams, and marks of 3 sessional will be added to the final semester exam. अब ये एग्जाम क्या है, नॉट लाइक अ पेज एंड पेपर, टर्म पेपर है, होम असाइनमेंट है, लाइब्रेरी गोइंग है, अ फील्ड विजिट है, देन एसे राइटिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, ड्रामाज हैं, ये ऑल आर पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस एवेल्युएशन, जिसमें आउट ऑफ 3 2 जो है ये कंपलसरी है, यानी आउट ऑफ 3 if you have not cleared the 2, you are not entitled to write final end semester examinations. And out of 3, 1 is surprise test, date will not be announced. The teacher will come in the classroom and will give you the question. Teacher will write a question on the blackboard and you will be asked to answer it. So this is called comprehensive continuous evaluation system. Class performance is there. एक बच्चा जो है क्लास में अटेंटिव है कि नहीं, और ही इज फिजिकली इन द क्लास और मेंटली ही इज इन द पार्क, ये भी हो सकता है. Is the children is responding to your answer, to your question? So ये all are part of comprehensive evaluation method. Then come to the जो हम क्वेश्चन और आंसर देते हैं फाइनल सेमेस्टर में आता है, बट ये 3 के 3 सेमेस्टर के भी उसमें जो है ये जुड़ते हैं. देन प्रोफेशनल एकेडमिक एंड कैरियर काउंसलिंग जो है इट मस्ट बी पार्ट ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन, ये जरूरी है. बिकॉज नाउ स्टूडेंट्स आर इन अ डिस्ट्रेस, मेंटली अपसेट, under tremendous tension, maybe the family tension, maybe the social tension or financial tensions. So unke well-being ke liye, because after all our center is a student. I would like to end here because I would like to love to listen from you and answer your question with a request that this education policy cannot be implemented if we teacher do not implement it. असंभव है, हो नहीं सकता. So let us recognize ourselves. हम अपने आप को पहचाने, हम अपने आप को पहचाने कि we are not साधारण, हम साधारण नहीं है. हमारे गर्भ में भविष्य भी है और भूत भी है. So unitedly you should work. You work for the Rashtra, because Rashtriya Shiksha Niti. And with this word, I am thankful to my dear brother, Vice Chancellor of this university and Registrar of this university, who gave me an opportunity to share my views with you. And I pray for you, for your better future, for your wealthy and healthy and happy life. And with this word के हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से. Every glass is broken when a stone hits it. हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से. My dear colleague, ऐसा शीशा तलाश करो
जो पत्थर को तोड़ दे। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। If you want to say something, your views and your ideas or any question or any statement about the NAP, then you are most welcome. Participants, you can please ask Mazhar sir if you have any doubts or questions. Mazhar sir. Yes, Dr. Tushar, you are audible, please. Yes, yes. Actually, I wanted to thank Mazhar sir for a very excellent session. That I don't have any question. Thank you, sir. क्यों क्वेश्चन तो होना चाहिए ना, देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आएगी? यू हैव टू क्रिटिसाइज मी कि नहीं आपने ये नहीं कहा और वो नहीं कहा, अदरवाइज पर्पस ऑफ द एजुकेशन इज नॉट सोल्व्ड। There is no point to criticize you because you have taken it to different level, and we are very satisfied. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you very much. Or anyone else? Because time was allotted till 5:30, so I was thinking I will be asked question and then I will answer. That's why I stopped. Dear participants, please ask any questions, any doubts to sir if you have. There are 97 participants and not a single question is asked. That it gives two meaning. सर Yes. सर नमस्ते सर। नमस्ते। सर एक छोटी सी एक जिज्ञासा है दिमाग में। जी बताइए। लिबरल वे से हम कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे? यदि लिबरलिटी में आ गए तो हमारे बच्चे हैं वो आज हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं वो गुरुकुल पद्धति हमारे चली आ रही है पहले से, जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस भी है, तो उस तरीके से लिबरल वे में एनईपी में हम यदि बच्चों को पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ा पाएंगे? इस पे थोड़ा अच्छा, मैं बताता हूँ। जी सर। जब हम लिबरल आर्ट की बात करते हैं ना, तो लिबरल आर्ट जो है कोई नई टेक्निक नहीं, ये हमारी परंपरा की बात है, नंबर 1 जी। नंबर 2, लिबरल आर्ट का मतलब ये होता है कि अब हम कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में जो पहले से बांधी हुई जो बाधाएं थी कि ये फिजिक्स है, ये साइंस है, ये आर्ट्स है, ये मैथमेटिक्स है, अब हमने उसको खत्म कर दिया है। ठीक है। लिबरल आर्ट का मतलब ये होता है कि एक स्टूडेंट का मान लीजिए वो इसका मेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री जी। अब वो हिस्ट्री के साथ मैनेजमेंट कर सकता है, इंजीनियरिंग कर सकता है, उसमें लॉ कर सकता है, लैंग्वेज कर सकता है, संस्कृत कर सकता है, ड्रामा कर सकता है, नाटक कर सकता है, यानी ऑन द बोर्ड देयर आर 100 से ज्यादा सब्जेक्ट जो है हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में रहेगा। वो छात्र और छात्रा को पूरी आजादी है, जो उसको अच्छा लगे, जो उसको इंटरेस्ट मिले, वो अपने हिसाब से वो अपना सब्जेक्ट रख सकता है। ये आपके कॉलेज के ऊपर जहां आप हैं या आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर जहां आप हैं, ये निर्भर करता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट स्टूडेंट के लिए वो एज ए ऑप्शनल रखता है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप गुरुकुल की बात कर रहे हैं मेरे भाई,
गुरुकुल में तो और मतलब कि बहुत ही ज्यादा सब सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। गुरुकुल में क्या बताइए, गुरुकुल में क्या लॉजिक नहीं है, गुरुकुल में क्या साइंस नहीं है, गुरुकुल में क्या फिलॉसफी नहीं है, गुरुकुल में क्या लिंग्विस्टिक्स नहीं पढ़ाई जाती, गुरुकुल में क्या वो जो है हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती। ओनली डिफरेंस ये है कि आपके लॉजिक को हम यहाँ अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, आपके हिस्ट्री को हम यहाँ अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे वो संस्कृत में पढ़ रहे थे। इसीलिए मैंने कहा था कि एजुकेशन में गुणवत्ता उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि बच्चा जिस भाषा में वो सोच रहा है उसी भाषा में उसको लिखने और पढ़ने की पूरी आजादी न दी जाए। कोई भी भाषा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मैं आपके सामने जो बोल रहा हूं मैं अपनी मातृभाषा में उसको सोच रहा हूं, और ये खुदा का बनाया हुआ जो सॉफ्टवेयर है वो मेरी मातृभाषा में मेरे सोच को कभी अंग्रेजी में कभी हिंदी में उसको अनुवाद कर रहा है। तो मातृभाषा का तो इम्पोर्टेंट जब तक के आदमी जीवित है रहेगा। किसी ने आपसे ये नहीं पूछा कि व्हाट इज योर फादर टंग, हमेशा पूछते हैं मदर टंग पूछते हैं। तो मदर टंग से मोहब्बत, हमारे माटी से मोहब्बत, हमारी संस्कृति से मोहब्बत, ये तो हमने अपनी परंपरा में और अपनी संस्कार में हमने वो सीखा है। यहाँ पर मैं एक चीज मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को बता दूं कि एनएपी इज नॉट अगेंस्ट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश इज अ वेरी गुड लैंग्वेज, साइंटिफिक लैंग्वेज। इंग्लिश को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, हर स्टूडेंट शुड लर्न द इंग्लिश, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ आवर ओन लैंग्वेज। अपने लैंग्वेज को त्याग करके अंग्रेजी की वकालत मैं नहीं कर सकता। अपनी जबान होती है। यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं? 96 लोग बैठे हैं। इसमें से आप लोग बताइए कोई भी आदमी अंग्रेजी में सपना देखा है ना कि अभी तक? नहीं देखा। रात में आपने देखा है? नहीं जी देखा नहीं सर। सर, जी नहीं। नहीं देखा। सपने भी आपको मातृभाषा में ही आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम उससे इस तरह से इमोशनली हम अटैच होते हैं। तो हम ये परंपरा, जो अंग्रेजी में बोलता है वही अच्छा है स्पीकर है, अंग्रेजी पढ़ रहा है वही अच्छा रीडर है, अंग्रेजी में जो बोल रहा है वही अच्छा स्कॉलर है। आप ये फैशन चल गया हुआ है, बेचारा सब कुछ जानता है लेकिन माहौल अंग्रेजी को बोल नहीं सकता। लेट हिम स्पीक इन उड़िया, उड़िया में बोलने दीजिए, कन्नड़ में बोलने दीजिए, असमीज में बोलने दीजिए, बांग्ला में बोलने दीजिए। वो अपनी बात बोलेगा, वो अपनी विचार बोलेगा, वो अपनी परंपरा को बोलेगा। अब मैं इंग्लिश में बहुत सारी बातें मैं नहीं बोल सकता जो अपनी मदर टंग में मैं सोच रहा हूँ कि हमारी लिमिटेशन है। सो मैं ये कह रहा हूं कि लेट द स्टूडेंट थिंक, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, एप्लीकेशन थिंकिंग होनी चाहिए। अनलेस और अनटिल अगर आप ये प्रोसेस अपने क्लासरूम में नहीं लाते हैं तब तक के आप शिक्षा में गुणवत्ता नहीं ला सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं तृप्ति दीक्षित। हम्म। आवाज पहुंच रही है सर? मैं उत्तराखंड से तृप्ति दीक्षित बोल रही हूँ सर। जी हाँ, बोलिए तृप्ति जी, बोलिए। जी सर, आप अभी कह रहे थे एक सरकारी शिक्षक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजता है जो 20,000 पर मंथ टीचर लेता है। जी। तो वहाँ संसाधन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शायद वो ज्यादा अच्छा लगता है सरकारी के में, इसीलिए भेजता है। इसके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कुछ विचार किया है क्या? सरकारी महाविद्यालय। जी हाँ, एकदम विचार किया। मैं आपको बता देता हूँ क्या विचार किया है। चूंकि ये हायर एजुकेशन के ऑल हमारे सीनियर कलीग्स थे इसलिए मैंने स्कूल एजुकेशन को टच नहीं किया। देखिए, हमारी जो बुनियाद है वो स्कूल एजुकेशन है। विद्यालय शिक्षा जो है हमारी बुनियाद है। अगर हमारी अभी तक हम क्यों खराब है? क्योंकि हमारी बुनियाद खराब है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर अभी भी लड़के चटाई बिछा कर पढ़ते हैं। बाथरूम नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, चापाकल नहीं है। मैं संस्कृत का टीचर अंग्रेजी पढ़ा रहा है, अंग्रेजी का टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है।
जो टीचर जो है मान लीजिए आप उत्तराखंड में है, वो टीचर जो है पंजाब, वो टीचर जो है मान लीजिए जो है वो नॉर्थ ईस्ट का है, वो पढ़ा रहा है अंग्रेजी में, वहां उत्तराखंड के लड़के समझ नहीं रहे हैं। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट कारण है बच्चों का स्कूल छोड़ना। आप जानते हैं कि हर साल स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं, उसकी 3-4 वजह हैं। एक वजह है, ये वजह है लैंग्वेज, भाषा। वो छात्र जो बोल रहा है वो शिक्षक नहीं समझ रहा है, और शिक्षक जो बोल रहा है वो छात्र नहीं समझ रहा है। तो हमारी बहन तृप्ति का जो प्रश्न है उसका उत्तर नंबर 1, हर स्कूल को फिजिकली जो भी फैसिलिटीज होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग बाथरूम और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो, नंबर 1। नंबर 2, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप है, अगर वो इस स्कूल उत्तराखंड में है तो जो पर्टिकुलर आपका कुमाऊं रीजन है, तो कुमाऊं रीजन के स्कूल में कुमाऊं रीजन के ही टीचर अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, नन कुमाऊं रीजन के टीचर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते। कारण बता रहा हूं आपको, क्योंकि वो कुमाऊं रीजन का टीचर वो होगा, वो स्टूडेंट की फैमिली बैकग्राउंड को, स्टूडेंट की भाषा को, स्टूडेंट के इतिहास को, स्टूडेंट की परंपरा को जानेगा, और जब वो बात करेगा तो स्टूडेंट के साथ उसका इमोशनल अटैचमेंट होगा। ये स्कूल के लिए हमने कहा है। तीसरी बात हमने स्कूल के लिए कही है, किसी भी हालत में, नॉट इन एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी टीचर को आप स्कूल से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे, इम्पॉसिबल। ट्रांसफर खत्म हो गई, आप इस एरिया के आप उसी एरिया में पढ़ाइए। नंबर 4, किसी भी टीचर से कोई भी गवर्नमेंट नन एकेडमिक काम नहीं करा सकता। वो खिचड़ी बनवाना, वो जो है वो चावल खरीदना, वो सर्वे कराना, वो कोई भी काम हो गवर्नमेंट का, चलो भाई स्कूल के टीचर को पकड़ लो, ये सब बंद करना पड़ेगा। और प्राइमरी और लोअर स्कूल के टीचर को जब तक कि आप हैंडसमली पेमेंट नहीं करोगे, टाइमली पेमेंट नहीं करोगे, उसके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे नहीं निकलेंगे, तो फिर ये महाविद्यालय और विश्वविद्यालय जो है ना, ये सब बेकार के बेकार रह जाएंगे। इसलिए आवर मोर एंड मोर कंसंट्रेशन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑफ द स्कूल, उसकी गुणवत्ता कैसे आएगी, बच्चे कैसे आएंगे। बच्चे आने के लिए हमने कहा है कि आप एक ब्रेकफास्ट देंगे, एक लंच देंगे। ब्रेकफास्ट पहले नहीं था, हमने एनईपी में कहा है कि ब्रेकफास्ट में एक बनाना ही हो सकता है, एक गिलास दूध ही दे दीजिए, 100 ग्राम चना ही दे दीजिए, लेकिन दीजिए क्योंकि बिकॉज माय डियर एस्टीम कलीग, आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे इस लोभ से आते हैं, इस लालच से आते हैं कि वहाँ नाश्ता मिल जाता है, वहाँ खाना मिल जाता है, और उसी खाना को आधा लंच में लेते हैं और आधा ले आकर घर पे खाते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इसके बारे में हमने सोचा है, और इसके बारे में हमने क्लियर कट जो है एनईपी में पूरी गाइडलाइन हमने लिखी है जी। थैंक यू सर, थैंक्स सो मच। Yes, participants, do you have any more questions? Please ask. Sir, thank you so much for clearing so many doubts today. We learned so many things, but I had one more question, sir, that this NEP policy implementation and the transition thereof, how many years you think it will take, sir? ओके, ये ईयर वाइज का प्लान हैज ऑलरेडी बीन चॉप्ड आउट। ये 2023 में क्या होगा, 2025 में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल 2023 में वी आर गोइंग टू हैव अ बोर्ड एग्जामिनेशन इन द लाइट ऑफ एनईपी। एनईपी के लाइट में बोर्ड एग्जाम हम करेंगे, नंबर 1। बाय 2030 एनएपी के जितने भी इम्प्लीमेंटेशन है, ये ऑल शुड बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री। नंबर 3, बाय 2025 फॉर एनी जॉब ईदर इन प्राइमरी और लोअर प्राइमरी और मिडिल स्कूल, 4 ईयर बीएड डिग्री बी कंपल्सरी। ये कंपल्सरी हो जाएगा। If you want
जॉब इन स्कूल 4 साल की BSc बीएड, बीकॉम बीएड और BA बीएड डिग्री जो है ये कंपलसरी हो जाएगा। दिस हैज बीन डन to bring enhancement in the quality of education. ये BA डिग्री हो जाएगा। So my dear sister Archana ji, each and every year wise plan has already been chalked out. Each and every university में for example अभी जो यूनिवर्सिटी MCU यूनिवर्सिटी जो करा रही है उन लोगों ने 75 सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं। I was also part of their committee. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑलरेडी मेड एन अनाउंसमेंट कि 75% के साथ नया जो एडमिशन होगा वो 4 ईयर BA का होगा। फॉर एग्जाम्पल we have offered 2 kind of undergraduate courses. One is for 3 years, one is for 4 years. 4 year with multiple entry and exit, 3 year with multiple entry and exit. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई BSc पार्ट 1 में है, 1 साल के बाद ड्यू टू सम रीजन, फाइनेंशियल रीजन और फैमिली रीजन, ही कुड नॉट कंप्लीट द एजुकेशन, वो चाहता है कि मैं क्विट कर जाऊं, तो उसको सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी। आफ्टर 2 इयर्स कंप्लीशन उसको जो है डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। आफ्टर 3 ईयर उसको एडवांस डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। आफ्टर 4 ईयर she will get a proper degree, but यहाँ पर 3 years BA डिग्री उनके लिए है those who do not want go for higher education. हायर एजुकेशन में जाने के लिए 4 ईयर की डिग्री होगी और 1 ईयर का BA होगा। I repeat, those students who are interested in higher education, for them 4 year BA, 1 year MA, no MPhil, direct PhD. For those students who are not interested in higher education, want to quit after 3 years, unke after 3 years he or she will get a degree and she can go in anywhere in a job. But for higher education, 4 year MA, 4 year BA and 1 year MA, no MPhil and PhD. Number of university in the country like a DU University में जो अभी एडमिशन होगा वो 4 year अंडर ग्रेजुएट कोर्स में होगा। आफ्टर 4 ईयर जो जब वो स्टूडेंट केम आउट आफ्टर 4 ईयर वो MA करेंगे 1 साल। वी आर इन ए प्रोसेस टू प्रिपेयर अ सिलेबस फॉर 1 ईयर MA, देन आफ्टर 1 ईयर MA डायरेक्ट PhD। तो ये ऑल दीज प्रोसेस जो है ना ये कंप्लीट हो रहा है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आर कमिंग, आ रहे हैं। नंबर ऑफ टीचर्स लाइक यू, लाइक अस, we are engaged in a preparing syllabus and the course curriculum. So date fix है कि इस साल में क्या होगा, इस साल में क्या होगा, इस साल में क्या होगा। अगर मुझको पहले कहा होगा तो मैं आपको पूरा डेट अभी बता देता। अभी बहुत सारी डेट हमको याद नहीं है, अदरवाइज आई हैव डेट कि ईयर किस ईयर में क्या होने वाला है, किस ईयर में क्या होने वाला है। सो माय डियर अर्चना जी, each and everything has been scheduled. Universities are coming out, colleges are coming out to implement it, and I am sure कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एकदम they are very adamant कि हम ये NAP को इम्प्लीमेंट करेंगे। जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक अपनी ज्ञान परंपरा को हम आगे नहीं ले जाएंगे और फिर हम विश्व गुरु जो पहले थे वो नहीं हो सकते। थैंक यू सर, दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। सर एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि हाउ डू वी फैकल्टीज वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू बी NEP रेडी? आपका हमारे लिए क्या सजेशन है सर? जी हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए NAP रेडी होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सिलेबस डिजाइनिंग। सिलेबस डिजाइनिंग जो है ये आप साइंटिफिकली बेस्ड ऑन नॉलेज जो है ये आप कीजिए। और आर यू इन द कॉलेज और इन द यूनिवर्सिटी? हेलो, कॉलेज सर। अच्छा, कॉलेज में क्या ये एक स्ट्रीम का कॉलेज है ना कि मल्टी डिसिप्लिनरी है आपके यहाँ? नहीं सर, आई एम रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस सर। अच्छा, कंप्यूटर साइंस, गुड, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टीचर ऑफ ए कंप्यूटर साइंस
number of students got enrollment in your college in computer science. अब कंप्यूटर साइंस के साथ साथ उनको एक फॉरेन लैंग्वेज का भी कोर्स दीजिए, उनको सोशल साइंसेस का भी एक कोर्स ऑफर कीजिए, उनको फिजिकल साइंसेस का भी कोर्स ऑफर कीजिए, उनको केमिकल साइंसेस का भी कोर्स ऑफर कीजिए इफ यू हैव इन योर कॉलेज। यानी आपके कॉलेज में जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के टीचर को रिक्वेस्ट कीजिए कि भैया मेरे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए जर्मन लैंग्वेज में कोर्स बना दो, जापानीज में कोर्स बना दो, कोरियन में कोर्स बना दो, पर्शियन में बना दो, स्पोकन इंग्लिश में बना दो, स्पोकन हिंदी में बना दो, ज्यादा नहीं 2 क्रेडिट का और 3 क्रेडिट का कोर्स बना दो। लाइकवाइज इन योर कॉलेज अगर हिंदी डिपार्टमेंट है, इंग्लिश डिपार्टमेंट है, उनको आपको रिक्वेस्ट करेगा कि अर्चना जी अरे आप तो कंप्यूटर की एक्सपर्ट है, अरे मेरे बच्चे जो अंडर ग्रेजुएट आ रहे हैं उनके लिए आप 2 क्रेडिट का कंप्यूटर कोर्स का बना दीजिए, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, इसमें ऑफ कैसे करेंगे, ऑन कैसे करेंगे, वो कट पेस्ट कैसे करेंगे, वो हम ईमेल कैसे खोलेंगे। तो इस तरह से आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से आप अपने कॉलेज में भी ये काम आप कर सकती हैं। ये है कि गिव एंड टेक होगा। अर्चना जी लैंग्वेज के लिए बनाएंगी, लैंग्वेज वाला अर्चना के लिए करेंगे, हिस्ट्री वाले जो है वो साइंस के लिए करेंगे, साइंस वाले हिस्ट्री के लिए करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज, जहां पर एक होलिस्टिक जो है अप्रोच हो, and in that holistic approach your principal and head of the departments are going to play a very important role. जी सर एक सवाल पूछना था। जी पूछिए। सर मध्य प्रदेश सरकार ने अभी एक आदेश जारी किया है कि ऑनर्स कोर्स में एडमिशन के लिए मिनिमम 60% मार्क्स होने जरूरी हैं 12th में। और अगर मतलब इसमें एक क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए किसी के 60% मार्क्स नहीं है और वो पास कोर्स 3 ईयर पास कोर्स में एडमिशन लेता है और 3 साल के बाद उसे मतलब उसे ये लगता है या वो उसका 3 साल में परफॉर्मेंस ठीक रहता है और अगर वो ये चाहता है कि वो रिसर्च में परस्यू करे क्योंकि उसका मोटिवेशन उसका बन गया है, तो क्या वो 4 ईयर डिग्री में प्रोसीड कर पाएगा? एकदम जरूर कर पाएगा, जरूर कर पाएगा। ये एकदम ना करने का कोई प्रश्न नहीं उठता मेरे भाई, एकदम कर पाएगा। बिकॉज हमने तो यही आजादी दी है बच्चों को। वो बच्चे फॉर एग्जाम्पल अगर आप वो अभी कंप्यूटर साइंस में से मैं अर्चना जी बोल रही थी कंप्यूटर साइंस में उसको 2 साल के बाद लगा कि नहीं कंप्यूटर साइंस में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई एम मच इंटरेस्टेड इन द फिजिक्स, तो ही कैन स्विच ओवर टू द फिजिक्स। अभी किसी ने एक हमारे मुकेश कुमार, मैं उनका क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आपके ही क्वेश्चन से रिलेटेड है। सर मेरा एक सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा क्या है, इसके बारे में कृपया कुछ जानकारी साझा करें। देखिए ये जो आपने क्वेश्चन किया ये भी क्रेडिट से ही रिलेटेड है। क्रेडिट का ट्रांसफर का मतलब ये होता है, देखिए हम क्रेडिट, आपने सुना होगा इस शब्द को, यानी नाम पर एक बैंक में एक अकाउंट खुल गया है, जैसे कि हमारा बैंक में अकाउंट होता है, इसको हम कहेंगे एकेडमिक क्रेडिट खुल गया उसका। अब वो हर स्टूडेंट जितना अर्न करेगा क्रेडिट वो उसके अकाउंट में जमा होगा। अब यहाँ पर दो टेक्निकल बातें आप समझ लीजिए। ये क्रेडिट ट्रांसफर जो है ये बराबर वालों में होता है। मतलब ये हुआ कि अगर ए ग्रेड का कॉलेज है तभी ए ग्रेड में जाएगा वो, बी ग्रेड का कॉलेज का स्टूडेंट बी ग्रेड में जाएगा, सी ग्रेड जाएगा, ए प्लस के ग्रेड का कॉलेज ए प्लस में जाएगा। ऐसा नहीं कि वन स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द बी प्लस कॉलेज एंड ही शी वांट टू मूव टू ए प्लस कॉलेज, ऐसा नहीं होगा। उसी लेवल के कॉलेज में होगा और ये ऐसे होगा। फॉर एग्जाम्पल वन स्टूडेंट इन मध्य प्रदेश में है, वो ये बेसिकली ऑनलाइन कंसेप्ट है। मैंने इसीलिए आपको कहा था ना कि अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स डिजाइन कर दिया और ओडीएल मोड पे जो है, ओडीएल मोड पे ये कोर्स जो है मध्य प्रदेश के कॉलेज ने या एक यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट कर लिया,
तो वो लड़का जो है एक जेएनयू का कोर्स ऑनलाइन जो है वो एडॉप्ट कर लिया है। अब जो है जेएनयू उसका एग्जाम लेगा, उसका असेसमेंट करेगा, और जेएनयू जो भी उसका क्रेडिट होगा उसका जो एकेडमिक क्रेडिट होगा उसमें ट्रांसफर कर देगा। इस तरह से एकेडमिक ट्रांसफर फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर कॉलेज। बट माय डियर एस्टीम्ड कलीग, कीप इन माइंड ये कॉलेज के नाक असेसमेंट से भी रिलेटेड है। A+ है तो A+ में जाएगा, B+ है तो B+ में जाएगा। जी Yes, anyone else who want to ask, sir? Any questions? Mr. Kamal Barua has asked something, you sir. एक क्वेश्चन है कमल बरुआ हुनिया सर तुम्ही कमल बरुआ तुम्ही हॅलो सर कुणी तुम्ही कोत की पढ़ावा है सर मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी पीएचडी स्कॉलर में एजुकेशन डिपार्टमेंट गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एमबीए डिपार्टमेंट आसा नकी नो सर पीएचडी स्कॉलर रिसर्च स्कॉलर तुम्ही येते पीएचडी स्कॉलर आसा कार लगत पीएचडी करी आसा सर मैं दुलुमणि गोस्वामी ते एजुकेशन डिपार्टमेंट होय है हाँ सर हाँ मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट आई एम फ्रॉम एजुकेशन अच्छा एजुकेशन डिपार्टमेंट दुलुमणि गोस्वामी पीएचडी करी आसा ते मोर बार फ्रेंड ठीक है ओके हां तो ही इज माय वेरी गुड फ्रेंड कार तुम्हारा डिमांड टीचर आसे तुम्हारा सीनियर टीचर ऑल दे आर ऑल माय फ्रेंड ओके सर your question is it is criticized that the NEP 20 will motivate the industrialization. Achha. There are two parts of his question. One part is saying that will motivate the industrialization of education in our country by establishing more private and foreign university in one side. We are talking about the idea based education. On the other hand, inviting foreign player. What is the opinion on? A very good question. Now there are two parts of question. One is industrialization of education. Yes, this is not the new phenomena. We have been doing it. Why we are saying that each and every institution must be attached with the industry? Because we want that one student passing out from an institution should not go here and there, should get immediate job. That is why number of universities with collaboration of the industry, they are designing such a course that is good for that industry. If I give the example of Assam, there are number of small industry, there are number of arts, number of artists, like the big industry, the cane industry and the bamboo industry. If in Guwahati University or in Tezpur University or in the Silchar University or any engineering college start a course in bamboo make furniture or cane making furniture with the help of the small industry established in the Guwahati and around surroundings, that will be good both for the student and both for the small industries. Two number example, there are number of garages in and around the Guwahati. If any college starts short-term vocational study in mechanic with the help of the local garage, that student after passing from the college easily can get job in that garage.
So what we are advocating, not industrialization of the education. We are rather than saying opposite educationization of industry. We want educationalization of the industry. Industry should come to our school. Industry should come to our college. Industry should come to our university and help us in preparing syllabus, help us in preparing infrastructure facilities, and we are a knowledge hub and we are providing them knowledge. So it is not otherwise, it is educationalization of the industry. Second part of your question is, we are inviting the foreign university. Yes. Why we are inviting the foreign universities? We are inviting foreign university with some certain conditions. If that university in the 100, among the best 100 university of the world, only those universities or colleges are invited to India who are among the 100 best university, number one. Number two, we are inviting the foreign university to create a sense of competition among our own education system. Number three, we want to sell our knowledge. We want to sell our indigenous knowledge. The Assam is the Northeast is a hub of indigenous knowledge. Musical instrument, the varieties of dance, medicinal plant, then whatnot, the flora and fauna, then the harvesting system, then everything is there. So we want to sell it to the other country. We want that the other country, other universities to come to the India and start course curriculum, design course curriculum in the light of NAP. And what is in the light of NAP? To develop a course that is Indianness and that has content of India. आरु की भाषा ने कमल की होई गोल. Thank you, sir. বুঝি পাইছো, sir. ঠিক আছে, যেতিয়া তুমি আমার দুলুমণিৰ লগত লগ পাবা, মোৰ কথা কবা দে, তেখেতে বুজি পাব. Oh, sir. Thank you. Okay, so are there any more questions or should we sum up? Sir, हाँ उपासना नमस्ते सर. बोलो. सर, एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं, क्या वो भी वोकेशनल कोर्सेज डिजाइन कर सकते हैं सर? जी उपासना जी जरूर कर सकते हैं. अभी इस एनएपी में जहां एज फार एज कोर्स डिजाइनिंग, as far as the vocational course designings are concerned, as far as the regulatories are concerned, प्राइवेट में और गवर्नमेंट में कोई फर्क नहीं है. Till 10th, I'm talking about the school, one country, one nation, one textbook in mathematics and sciences. ये implement होगा. Number 2, we cannot implement one book across the country in geography or history, because each and every state of our country has its own geography, in own history, its own culture, in own tradition. But as far as possible, we are trying that a student sitting in a Meghalaya and one student sitting in a Tamil Nadu, they are reading the same science textbook and the same science mathematics. हम ये किस वजह से कर रहे हैं उपासना जी? क्योंकि हम we have come to know कि CBSE में जो नीट के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, they are the based on the CBSE textbook. इससे क्या हो रहे हैं, जो बेचारे हमारे रूरल बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, those coming to the unprivileged society, coming from the cutoff area, वो compete नहीं कर पा रहे हैं. So at least science और मैथ का एक टेक्स्ट बुक हो. आपका जो क्वेश्चन था वो प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोर्स डिजाइनिंग, सिलेबस, रेगुलेटरी, असेसमेंट,
में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही तरह से दोनों काम करेंगे। ओनली डिफरेंस इज दैट कि आपका मैनेजमेंट अलग है, मेरा मैनेजमेंट अलग है, लेकिन सिलेबस डिजाइनिंग में प्राइवेटली तो और ज्यादा कर रहे हैं। आई नो नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस, वो वैराइटीज ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होने शुरू कर दिया है ऑलरेडी, दे हैव स्टार्टेड इट, और लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो विजिट कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि इसको करने के बाद यू विल गेट अ जॉब। सो ये बहुत अच्छी बात है कि हर कॉलेज शुरू करे, और हर कॉलेज को शुरू करना चाहिए। थैंक यू सर। So I guess we should conclude this. Sir, it was a very beautiful and nice session to conclude. And on the behalf of Department of Media Management and Makhalal Chaturvedi University, I would like to thank you, Asif sir, for your words of wisdom and providing us deep insight about this NEP 2020. And I hope all the teaching fraternity would get a lot from your session, from your lectures. And I hope we can hear you sometimes again in the near future. So I would again like to say thank you, sir, and thank you everyone for joining our sessions. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you. God bless you. Be happy. Thank you. Thank you, sir.